Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision, your biology mentor. Welcome to all of you again in this new session of NTSC Stage 2. So in today's session, हम discuss करेंगे NTSC Stage 2 paper 2020. Right? And as we know that this exam is conducted in two stages, that is NTSC Stage 1 and NTSC Stage 2. Stage 1 is a state-wise exam and stage 2 is national-wise exam. So in today's session, we are going to discuss NTSC stage 2 of the paper of the year 2020. Right? Before discussing the questions of the paper, I would like to inform you something that about the syllabus of the NTSC exam. The syllabus comprises of the both class 9th and 10th. तो 9th और 10th में आप जितना भी पढ़ते हो साइंस सेक्शन में, that all comprises the syllabus of NTSC stage 1 and 2. तो हमको 9 से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी है for NTSC stage 1 and 2 because as we discuss the questions, you'll come to know that the questions are straight away from the topics which is there in class 9th and class 10th. Though the exam is conducted for class 10th, but you have to go through the syllabus of class 9th as well for NTSC exam. I guess आप लोगों को बात समझ आ गई होगी to all of you. So should we start discussing with the paper? Okay, let's see what is our question number 1, what it says. देखो, again I was saying the same thing that the question is from the topic diversity in living organism. है ना? This question belongs to the topic which is in your syllabus in class 9th. है ना? The question number 1 says, a taxonomist during his voyage found a solitary marine animal with spines on skin. तो अब क्या क्या present है? वो घूमने गया, just a second बच्चा. And during his voyage, what he found? He found an animal. Animal में क्या क्या present है? This is what is given in the question. That is animal with spines. Animals में spines present है on the skin which is made up of calcium carbonate. Right? However, its coelom was made of pouches pinch off from endoderm. है ना? Coelom कैसी present है? Pouches का. Right? Assign the specimen to the most appropriate phylum. अब आपको ये बताना है कि वो animal कौन से phylum को belong करता है out of these 4 which is given in the options. Option 1 Chordata, option 2 Nematoda, option 3 Coelenterata, option 4 is Echinodermata. तो animal मिला उस बंदे को और these are the features which is being present in the organism. अब देखो स्पाइन्स की अगर हम बात करें, स्पाइन्स इफ प्रेजेंट ऑन दी स्किन, तो स्पाइन्स किस में होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में? इट इज इकाइनोडर्म्स. तो हमें एक्चुअली आंसर तो यहीं से मिल गया. यस शुभम, एब्सोल्युटली राइट बेटा. हम अगर स्पाइन्स की बात करेंगे तो स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर इकाइनोडर्म्स. है ना? स्किन किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट. ये भी इकाइनोडर्म्स का फीचर है. And then coelom कैसी present है? In the form of pouches. Again the feature of echinoderms. ठीक है? तो हमारा the correct answer is echinoderms. Shubham is absolutely correct. The correct answer out of these 4 is echinoderms. Echinoderms के बारे में आपसे questions और भी पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ specific features हैं echinoderms के जो कि सिर्फ Echinodermata phylum में present है. जैसे all the organisms belong to this phylum Echinodermata are actually exclusively marine animals. Sorry, it is exclusively these are exclusively marine animals present in the phylum Echinoderms. तो ये एक question बन सकता है कि आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है that which of the 2 phylums are having exclusively marine. Exclusively marine का मतलब there is no freshwater organism present in the phylum. तो अगर हम उन 2 phylum की बात करें जिसमें सिर्फ marine animals present हैं which does not have any fresh water, तो एक हम echinoderms की बात कर सकते हैं. One more phylum is there and that is called as Ctenophora. If you have studied the phylums properly in sequence,
that is the phylum number 3 after Porifera and Coelenterata. It comes Ctenophora. These two phylums are exclusively marine animals, having marine animals, because there is no fresh water present. ठीक है, and this is the smallest phylum as well. ध्यान रखनी है ये बात हमको. Ctenophora is also smallest phylum. Why we are saying smallest phylum? Because there are very less number of the organism present in this phylum. Hence, this phylum is known as the smallest phylum. So, Ctenophora and Echinodermata, these are the two phylums in which only marine animals are present. There is no freshwater organism. समझ आई बात? To everybody? ठीक है, तो ये चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस क्वेश्चन इज बीन टेकन फ्रॉम क्लास 9th ऑफ द टॉपिक डाइवर्सिटी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर साल आपको एक या दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिल जाएंगे इन एनटीएससी स्टेज 2 एंड इवन इन एनटीएससी स्टेज 1. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब ये दिस क्वेश्चन यू नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेनेटिक से उठाया हुआ है, एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 10th. टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा. एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप AABBCCDDEE is crossed with another individual with genotype AABBCCDDEE, assuming Mendelian pattern of inheritance. Predict the proportion of the small a, small b, small c, small d, small e among the progeny of this cross. Interesting question है. देखो, ये question is actually taken from the Mendelian laws. That is, you know, if you have studied about the different laws of the Mendel's, law of dominance, law of segregation, and the law of independent assortment. तो उन्हीं लॉस को नज़र में रखते हुए आपने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ज़रूर पढ़े होंगे. सो उसी क्वेश्चन से, उसी टर्म्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दो प्लांट की बात कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, उनके जीनोटाइप दिए हुए हैं हमको, और हमको क्या पूछा हुआ है? उनके जीनोटाइप को देने के बाद आपको ये बताना है जब उनकी प्रोजेनी बनेगी तो प्रोजेनी में आपको जस्ट अ मिनट, प्रोजेनी में आपको ये बताना है कि इतने प्रोजेनी के कितने मेंबर्स बनेंगे, इस जीनोटाइप की प्रोजेनी के कितने मेंबर्स बनेंगे. अब देखो, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, ऑल आर स्मॉल कैपिटल, ऑल आर स्मॉल अल्फाबेट्स. that means AA small, BB small, CC small, DD small, EE small. that means अगर small letter के आपको जीनोटाइप रिप्रेजेंट किया हुआ है, that means all are recessive, है ना. कैसा है कंडीशन? रिसेसिव कंडीशन है. ओके देखो, आपने लॉ ऑफ डोमिनेंट पढ़ा होगा, तो उसमें अगर हम कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं, अपर केस लेटर की बात करते हैं, तो दैट रिप्रेजेंट डोमिनेंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द लोअर केस जीनोटाइप, दैट रिप्रेजेंट दी रिसेसिव, है ना. और अगर कंडीशन ये है, मानो इफ इट इज AA और BB, so this is heterozygous pair. Heterozygous pair क्यों? Because one allele is dominant and the other allele is recessive. ठीक है, अगर मान लो इस तरह से कंडीशन दी है, दोनों ही एक एज गिवन है, दोनों ही अपर केस में गिवन है, देन दिस विल बी होमोजाइगस कंडीशन. ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? होमोजाइगस. ठीक है, ये भी कंडीशन आपकी होमोजाइगस, बिकॉज बोथ A's and B's given in their upper case form. ये कंडीशन आपकी जहां पर one allele is capital and the other allele is in lower case, है ना. तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? हेटेरोजाइगस. इतनी बात हमें जरूर मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो हमें रिसेसिव प्रोजेनी बतानी है कि कितने जीनोटाइप, कितने प्रोजेनी की रिसेसिव जीनोटाइप है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन. तो दो इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं जिसका कि दिस वन इज द जीनोटाइप, वन इज दिस एंड द अदर इज दिस वन. तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? व्हाट वील डू, फर्स्ट वील कैलकुलेट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ द हेट्रोजेनस पेयर इज गिवन. हेट्रो मींस दिस वन, है ना. हेट्रोजाइगस कंडीशन कितने पेयर्स में है? तो देखो, अगर हम पहले जीनोटाइप की बात करें, इट इज AABBCCEE, यानी कि 4 पेयर्स आर एक्चुअली इन हेट्रोजाइगस फॉर्म इन फर्स्ट केस.
फर्स्ट केस में 4 पेयर्स आर इन हेट्रोजाइगस फॉर्म. देखो आप, व्हेन यू विल गो थ्रू दिस वन डीडी, दिस इज बोथ रिसेसिव. तो ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं हुई, ये तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई. एज आई टोल्ड यू, इफ इट इज बोथ ए लाइक दिस गिवन, और इफ इट इज बोथ स्मॉल ए स्मॉल बी, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन. तो हमारे पास कितने हेट्रोजेनस पेयर है, हेट्रोजाइगस पेयर है? इट इज 4 इन केस ऑफ नंबर 1 इंडिविजुअल. ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं. दूसरे इंडिविजुअल का जीनोटाइप देख लो, ए बी अगेन रिसेसिव, हेट्रोजेनस नहीं है ये, हेट्रोजाइगस नहीं है ये. ठीक है, तो ए सी सी डी डी ई, इस केस में भी 4 हमारे क्या बनेंगे? इट इज 4 हेट्रोजाइगस कंडीशन. ठीक है, तो एक्चुअली नंबर ऑफ गैमीट्स हमारे क्या बनेंगे? इट इज दिस. हमें अब बताना है आपको इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमीट्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, where n is the number of the genetic pair. n genetic pair कितना है हमारा? 4 in this case, 4 in this case. So what we'll do, that is 2 raised to the power 4 in this case even, 2 raised to the power 4 in this case even. ठीक है, तो हम इसको when we'll calculate this, it comes out to be 16 in this case and 16 in this case. ठीक, so this is our number of gametes. And then when we will go for the cross of this number of gametes formed, तो हमारे पास कितनी प्रोजेनी आएगी इन F1 जनरेशन, आपको अब ये बताना है. तो हम what we'll do, we'll go for cross of these two, it comes out to be 256. देखो आंसर तो हमें मिल गया है, 256 सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है. ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, इतने में से कितने ऐसे जीनोटाइप की प्रोजेनी बनेगी, है ना? टोटल नंबर इज 256. 256 प्रोजेनी आएगी, बट आउट ऑफ दिस 256 हाउ मेनी ऑफ द प्रोजेनी विल हैव दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप? दैट मींस ऑल आर रिसेसिव फॉर्म. ठीक है, तो अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, उसमें आपने F2 जनरेशन पढ़ा है, तो यू मस्ट हैव स्टडीड दैट आउट ऑफ 4 1 इज दैट इज रिसेसिव, है ना? 4 में से हमारी एक ही तो रिसेसिव बनती है, बाकी तो क्या होते हैं? दीज आर ऑल टॉल. The fourth one is the dwarf one, which is completely recessive. अगर आपने हाइट ट्रेट को ध्यान में रखते हुए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा है, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट दी ओनली 1 इज कंप्लीट रिसेसिव, बाकी रेस्ट 3 आर डोमिनेंट इन नेचर. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, वहां पे हमने सिर्फ एक ट्रेट को पढ़ा था, 1 पेयर ऑफ जीन वाज देयर, है ना? यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट है, क्योंकि हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन को लिया है, बाकी तो एक हमारा रिसेसिव फॉर्म में है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वील मल्टीप्लाई 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. तो व्हाट इट कम्स आउट टू बी, देख लो क्या आएगा आंसर? 1/256. यानी कि out of 256 only 1 progeny is there which have this kind of genotype which is completely recessive. समझ आई बात? तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? That is 1/256. Out of 256 progeny, there is only 1 individual, 1 progeny which has this kind of genotype which is completely recessive in nature. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जेनेटिक्स का नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत सिंपल सा फंडा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए. उसमें फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियोज क्या निकल के आएंगे आपको ये मालूम होना चाहिए, प्लस व्हाट इज द केस ऑफ डोमिनेंस एंड व्हाट इज द केस ऑफ रिसेसिव. कितने डोमिनेंट निकल के आए, कितने रिसेसिव निकल के आए, इन सब की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. So on the basis of that only I solved this question, on the basis of the phenotypic and genotypic ratio of the monohybrid cross in F1 generation and in F2 generation. Yes beta? Yes. वन कैसे आया? देखो ना, ये इसलिए ऐसे आया, व्हेन यू गो फॉर क्रॉस विद दिस वन. देखो हमने वहां पे क्या किया था, हमारे पास 4 प्रोजेनी आई थी, इफ यू रिमेंबर 4 प्रोजेनी आती है ना वहां पे. यस, दिस मच यू नो आई गेस चेष्टा, है ना? 4 में से इफ यू रिमेंबर हमारा अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा क्रॉस में क्या आएगा? दैट इज TR एंड TR, सॉरी TT, नॉट TR, इट इज TT. यही तो हमारा उसमें आया था, बनेगा जो F1 में
लाइक दिस ओनली, है ना. हम अगर बिल्कुल प्योर लाइन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज दिस वन एंड दिस मच, तो हमारा किस तरह से गैमीट्स बन के आएंगे, टीटी एंड टीटी. F2 जनरेशन में कैसे आएंगे, दिस टाइप टीटी एंड टीटी, यस और नो. तो हमारा देखो आप, सिंपल सा फंडा है. कितने आ रहे हैं, 4 प्रोजेनी में से 3 कैसे आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं बेटा, है ना. अगर हम इसका फिनोटाइप रेशियो देखेंगे तो 3:1, यानी कि 1/4 विल बी आवर रिसेसिव फॉर्म. सही बात है बेटा. सेम गोज विद हियर, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है आपको. वहां पे हमने क्योंकि 1 पेयर लिया था, ठीक है बच्चे, यहां पे हमने 4 जीन पेयर लिए हैं, इसलिए हम इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. राइट चेष्टा. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप आप कर पाओगे तभी जब आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फंडा अच्छे से पता होगा, एंड स्पेशली द रेशियोज दैट कम्स इन F1 एंड F2 जनरेशन ऑफ फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो. ठीक है, तो जेनेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर NTSC स्टेज 1 एंड 2 बोथ. ध्यान रखनी है ये बात, हमको पढ़ना है, हमको जेनेटिक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू 3. Which one of the 4 methods of propagation is likely to lead to maximum variation in DNA sequence through generation? है ना. propagation का मतलब क्या होता है, propagation का मतलब होता है, propagation का मतलब होता है that is a kind of reproduction only, है ना. तो reproduction की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, and basically it's a method of asexual reproduction. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि किसमें मैक्सिमम वेरिएशंस विल टेक्स प्लेस. ठीक है, तो फर्स्ट इज बडिंग इन हाइड्रा, सेकंड इज बाइनरी फिशन इन अमीबा, थर्ड इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड फोर्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन शुगर केन. तो अब आपको इसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा वेरिएशंस कौन बनाएगा. देखो, बडिंग इन हाइड्रा की बात कर लेते हैं. तो अगर हम बडिंग की बात करें, हमें मालूम है बडिंग किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. बडिंग इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. आप लोगों ने अगर थोड़ा सा पढ़ा है तो व्हाट इज बडिंग एक्चुअली. मान लो इफ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा, ये हम हाइड्रा की बात करते हैं, टेंटिकल्स ऑन इट सरफेस, ठीक है, एंड देन अ स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड अ बड, है ना. इट विल कंप्लीटली अटैच टू द पेरेंट अनलेस एंड अनटिल इट विल मैच्योर. Once it's mature, then it's get detached from the parent cell. ये पूरा जब mature हो जाएगा तब ये टूट जाएगा, इससे डिटैच होके इट विल ग्रो एज एन इंडिविजुअल. तो इस केस में वेरिएशंस नहीं आएंगी बिकॉज इट इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी. एसेक्सुअल में नो वेरिएशंस. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बाइनरी फिशन इन अमीबा. कितनी बार लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, when one amoeba divides into two daughter cells, when because we know that amoeba is an unicellular organism, है ना. एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ by the process of binary fission, again asexual mode of reproduction, तो no variations or less variations. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, reproduction in human beings. This is actually our answer, reproduction in human beings. अब देखो ना, reproduction in human beings की बात करते हैं तो it is biparental. ठीक है, biparental means the 2 parents are involved, right? That brings the maximum variations in DNA sequence. अगर आपने थोड़ा सा meiosis के बारे में जानते हो, it is one of the type of the cell cycle. तो meiosis भी होगा, gametes meiosis के through form होते हैं, then the fusion of the gametes is there. So that brings the information, the genetic information of the 2 parents. So basically then only it will bring the variations. So meiosis होगा, crossing over होगा, recombinations होगा, all of it will be there. So that brings the changes in DNA sequence, hence brings variations. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ शुगर केन इज अगेन अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशंस नहीं होते. किसमें वेरिएशंस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और जब हम थर्ड ऑप्शन को रीड कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, इट इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द 2 पेरेंट्स, दैट इज इट इज बायपेरेंटल. दैट इज व्हाई इट ब्रिंग्स मैक्सिमम वेरिएशन इन डीएनए सीक्वेंस. समझ आई बात, ठीक है, क्लियर है बेटा. सो दिस इज हाउ आवर करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर 3. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. A case of biomagnification was being studied.
अब इसके लिए अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 9th, आपका जो टॉपिक है क्लास 9th में नेचुरल रिसोर्सेज, उस क्वेश्चन से इस टॉपिक को लिया हुआ है. A case of biomagnification was being started. A laboratory received equal quantities of 3 samples, M, N and O. The level of pesticides found in these samples are as follows. देखो क्वेश्चन में ना दिया हुआ है सब कुछ, हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट है ना, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है कि सैंपल्स का जो MnO का क्वांटिटी है कि कितना नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन ईच वन, इट इज गिवन. M is equal to 1 mg, N is equal to 0.2 mg, O is equal to 3 mg. The samples of M, N and O respectively could be. अब आपको ये बताना है कि सही ऑप्शन क्या है. शुभम is saying it is 2. सही बचे, it is 2. Actually the answer is 2, but let us calculate whether it is 2 or not. देखो इस क्वेश्चन को जानने के लिए ना आपको बायोमैग्निफिकेशन मालूम होना चाहिए. व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, है ना. तो बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी फूड चेन को पढ़ते हैं, दैट मीन्स दी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी यू नो इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल्स or some pesticides which are non-biodegradable is being accumulated, or its concentration goes on increasing as we go top in the different tropic levels. जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स में, वैसे ही वैसे इन नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है. तो इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, तो अभी हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि हमारा प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है ना, कि कौन से ट्रॉपिक लेवल में कौन सा ऑर्गेनिज्म विल फॉल. तो उसके लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है क्लास 9 से. ठीक है, चलो अभी लिख लेते हैं कि किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. M की बात कर लेते हैं. M कितना दिया हुआ है, M इज इक्वल टू 1 mg. ठीक है, N क्या दिया हुआ है, N इज इक्वल टू 0.2 mg एंड O क्या दिया हुआ है, 3 mg. अब देखो 3 mg की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन कहां पर है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स कहां पे प्रेजेंट है, O पे प्रेजेंट है, दैट इज 3 mg. ठीक है, और आपको बताना है सैंपल्स ऑफ M, N, O रिस्पेक्टिवली कुड बी, इतना दिया हुआ है. तो अब O 3 mg है, यानी कि सबसे ज्यादा इसका है. सबसे कम किसका है, 2 mg, सॉरी 0.2 mg. सबसे कम इज N. तो N हमारे पास क्या होगा, इफ यू नो दैट प्रोड्यूसर्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगा हमारा, ग्रास, ये आएगा. ठीक है, लेकिन हमको इस तरीके से बतानी है MnO. तो N ऑब्वियसली दिस इज आवर M, this becomes our N, that is 0.2 mg. ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं. दूसरे पे क्या आएगा, ग्रास हॉपर खाएगा ग्रास को, है ना. ग्रास हॉपर इंसेक्ट है तो खाएगा ग्रास को, तो अपर ट्रॉफिक लेवल पे क्या आएगा, ग्रास हॉपर आएगा. ग्रास हॉपर का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज M. तो ये हो जाता है हमारा दिस 1 mg. ठीक है, MnO की उसकी आपको कंडीशन में बताना है. तो डेफिनेटली दिस विल बी taken, the concentration is present in grasshopper, this much is present in N, that is 0.2 mg, and the last one, that is O, maximum present, maximum concentration of the chemicals must be present in the birds, because then birds eats the grasshopper. ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा, डिपेंडिंग ऑन दी दिस सीक्वेंस MnO will be option number 2. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए बायोमैग्निफिकेशन मालूम होना चाहिए. दैट इज गिवन इन योर टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज इन क्लास 9th. ठीक बात है, क्लियर है तुम लोगों को, एवरीवन. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. अगेन दिस टॉपिक इज गिवन टेकन फ्रॉम द सेम थिंग, है ना. इलस्ट्रेट ऑफ द pyramid of a number of an aquatic ecosystem is given, है ना. द pyramid ऑफ एनर्जी फॉर द सेम इकोसिस्टम वुड बी. अब आपको इसमें से ये बताना है कि pyramid ऑफ एनर्जी, जो ये pyramid ऑफ एनर्जी है, अगर ये सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे तो किस तरह का pyramid ऑफ एनर्जी बनेगा. देखो हमेशा याद रखो, pyramid ऑफ एनर्जी अपराइट होता है. क्यों अपराइट होता है, देयर इज अ लॉ विच इज कॉल्ड एज लिंडरमैन्स लॉ. लिंडरमैन्स लॉ क्या बोलता है, दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल,
बाकी 90% का क्या होगा? बाकी 90% is utilized by the organisms of the same trophic level in their metabolic activities. ठीक है, तो ओनली 10% ट्रांसफर हो रही है एनर्जी. तो एज वी गो हाई इन दी ट्रॉपिक लेवल, सो द पिरामिड गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, तो अब यहाँ देख लो, यह तो डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ गया, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो ये गलत हो गया. ठीक है, इस पे आ जाते हैं. ये भी देखो बिल्कुल ही बढ़ा दिया, यहां से ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी गलत हो गया. ठीक है, यहां देख लो बिल्कुल सही जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है ग्राफ हमारा, पिरामिड बिल्कुल ठीक बन रहा है. सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर, उसके बाद 90% is used up, 10% transferred, again 90% used up, 10% transferred, and the same is the other trophic level. So this is our correct option. इसमें confusion हो सकता है आपको, but then देखो phytoplankton and zooplankton, they are actually on the same level. तो ये तो possible नहीं है. अभी हमने discuss किया, according to Lindeman's law, only 10% of the energy transferred. तो अपराइट पिरामिड बनेगा, इसलिए यहां पर इसमें गड़बड़ी हो गई, ये गलत चीज हो गई. ठीक है, यहां पे हम फिर भी सही मान लेते हैं, बट यहीं पर गलत हो गया, तो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन. हमारा सही अपराइट पिरामिड क्या बनेगा? दिस वन, दैट इज एनर्जी लेवल इज गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो हाई इन द ट्रॉपिक लेवल्स. ठीक है, समझ आ रही है बात? तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. Okay. This question is taken from the topic heredity and evolution. है ना, आपका क्लास 10th का ही टॉपिक है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा क्लास 10th में. इंटरेस्टिंग टॉपिक. देखो, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच इज कमिंग फ्रॉम द सेम टॉपिक. वन हमको जो प्रोजेनी का जीनोटाइप मालूम करना था, रिसेसिव जीनोटाइप वाज गिवन, है ना, तो दैट वाज फ्रॉम हेरिडिटी एंड दिस इज फ्रॉम एवोल्यूशन. तो क्वेश्चन इज सेइंग, which of the following traits would an evolutionary biologist consider to understand the divergent evolution process? है ना, तो बेसिकली आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इज एक्सप्रेसिंग द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये ऑप्शंस पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? देखो, डाइवर्ज का देखो एज ए नेम सजेस्ट, डाइवर्ज मतलब चीज एक जगह से स्टार्ट होके दो दिशा में चली गई, है ना, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस और इन मेनी डायरेक्शंस. नो शुभम, यू आर इनकरेक्ट बेटा. लेट्स डिस्कस. देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द वन पॉइंट, दैट इज द वन ओरिजिन, एंड इट डाइवर्ज इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, है ना. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट मीन्स it clearly indicates same structure with different function, same structure with different function. ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात हमें. ओके, एंड देखो, अब सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. आपने क्लास 10th में हो सकता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ना पढ़ा हो, लेकिन आपने होमोलॉगी जरूर पढ़ी होगी. आपकी क्लास 10th का सिलेबस है होमोलॉगस ऑर्गन्स, है ना. तो होमोलॉगस ऑर्गन्स का क्या मतलब है? वन एंड द सेम थिंग, सेम स्ट्रक्चर विद डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, अब देखो, ये चीज एक चीज और भी रिप्रेजेंट करती है. विद दिस वी कैन कंक्लूड वन मोर थिंग. homologous organs or divergent evolution represents common ancestry. Why common ancestry? Because we have originate from the same point. तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं ये बात, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन एक डिफरेंट तरीके से. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? तो आपका ऑप्शन में, एक में ऑप्शन में हो सकता है होमोलॉगी, एक में हो सकता है कॉमन एंसेस्ट्री, एक में हो सकता है बोथ ऑफ दीज, एक में हो सकता है नन ऑफ दीज. सो योर आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज, बिकॉज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब भी यही है, होमोलॉगी. दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड देन बीइंग स्प्रेड आउट इन डिफरेंट एरियाज डिपेंडिंग ऑन द अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट. ठीक है, एंड बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, इट शोज, इट रिप्रेजेंट कॉमन एंसेस्ट्री. समझ आ रही है बात? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगी एंड कॉमन एंसेस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो आपने होमोलॉगी जरूर पढ़ी होगी इन क्लास 10th. अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे कि कौन सा वाला ऑप्शन रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन.
ठीक है, देखो जहां फ्लिपर की बात कर रहे हैं ना, तो फ्लिपर इज एक्चुअली यूज फॉर स्विमिंग और विद डिफरेंट स्ट्रक्चर. हम तो सेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गए. शुभम तूने वन क्यों बोला बेटा? सेम स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है. ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4, ह्यूमन आर्म, seal of four limb and wing of bird, they have same origin, they have same structure, है ना, but used for different function. देख लो ह्यूमन आर्म किस लिए यूज होता है? फॉर ग्रैबिंग द थिंग्स, हम चीजों को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, सील की बात कर लो, इट इज एन एक्वेटिक मैमल. एक्वेटिक मैमल है तो किस लिए यूज करेगा? फोर लिम्ब, फॉर स्विमिंग. ठीक है, विंग ऑफ अ बर्ड किसके लिए यूज होगा? फॉर फ्लाइंग. All together in 3 different organisms, they belongs to the same origin, but they have a different function. So divergent evolution is actually present in these organisms, which is given in the option number 4. तो आई गेस समझ आ रही होगी बात, क्लियर है? अब ये चाहो तो आप नोट्स में जरूर लिखो अपने. प्लीज डू राइट इन योर नोटबुक्स whatever extra information I gave you, because this can be asked in your next stage, I mean upcoming exam. So it will be a fruitful for you always if you find this kind of questions from the topic heredity and evolution. ठीक है, तो प्लीज डू राइट इन योर नोटबुक्स whatever you have extra. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. What does our next question says? That is question number 7. In adjacent, देखो क्वेश्चन देख के ना ऐसे लग रहा है जैसे कितना बड़ा सा क्वेश्चन है और पता नहीं क्या पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. वंस यू रेड द क्वेश्चन यू विल फाइंड इट्स द इजीएस्ट वन. टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 9th, वहां से उठाया है. ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है? इन adjacent agricultural land of nearly equal dimensions, two farmers A and B had cultivated crops of their choice. है ना, 2 फार्मर थे, दोनों ने अपनी लैंड पे क्या किया? क्रॉप को ग्रो कराया ऑफ देयर चॉइस. एंड ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, है ना. अब पैथोजन अटैक द क्रॉप्स. अब एक पैथोजन आया उनकी क्रॉप को खाने, अटैक किया क्रॉप पे, एंड डिस्ट्रॉयड इट इन द लैंड बिलोंगिंग टू द फार्मर ए. तो किसकी क्रॉप को खराब कर दिया? फार्मर ए की क्रॉप को खराब कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही सफर्ड कंप्लीट लॉस. अब एक क्रॉप खराब हो गई ना उसको, तो वो कुछ कमाएगा ही नहीं, उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, बिकॉज ही हैज नथिंग टू सेल. तो डेफिनेटली उसको बहुत ह्यूज लॉस हो गया. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ऑल्दो the pathogen attacked the adjacent land belonging to the farmer B, he was able to earn some money by selling the yield. That there were 2 farmers, A and B, farmer A and farmer B. Farmer A की क्रॉप को पैथोजन ने अटैक किया, सारा क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको he suffered from huge loss. उसने कुछ नहीं अर्न किया तो वो बंदा बेचारा परेशान हो गया क्योंकि उसकी सारी क्रॉप बर्बाद हो गई, है ना. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फार्मर बी, he was able to earn money by selling the yield. उसने कुछ उसमें से क्रॉप में से कमा लिया. What does that mean? The possible explanation for the above is, before reading the options, what does that mean? That means there is a crop which is actually left. It is not attacked by the pathogen. Pathogen की एक tendency होती है to attack a particular type of crop, or we can say it is specific to a specific crop. ठीक है, तो अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं. क्या है ऑप्शंस? फार्मर ए मस्ट हैव कल्टिवेटेड ओनली 1 crop, whereas the farmer B must have cultivated 2 crops. Farmer A and B must have cultivated the same crop with the fence between the 2 agricultural lands. Farmer A over irrigated the crop, due to which it is attracted by the pathogen. Pathogen ऐसे attract नहीं होता कि बहुत ज्यादा उसको मिल गया तो बहुत ज्यादा खा लिया. इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. फार्मर बी रिमूव्स वीड्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड लैंड. ऐसा भी नहीं होगा कि अगर वीड्स हट जाएंगे तो पैथोजन अटैक नहीं करेगा. तो बी 3 और 4 बिल्कुल गलत है. अब देखो ये किसका क्वेश्चन है? दिस इज अ केस ऑफ इंटर क्रॉपिंग. आपने जरूर पढ़ा होगा इंटर क्रॉपिंग. दिस इज द केस ऑफ इंटर क्रॉपिंग, है ना. तो इसमें क्या होता है? इंस्टेड ऑफ गो फॉर 1 क्रॉप, फार्मर ग्रोज द 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम एग्रीकल्चरल लैंड, है ना. एक क्रॉप को ग्रो कर दिया उसने, बराबर में ही उसी लैंड पे दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया. तो यानी कि उसने 2 क्रॉप को ग्रो किया. तो एक्चुअली ही यूजेस हिज ब्रेन वाइजली. ही हैज डन दिस कि अगर एक खराब हो गई तो दूसरी है मेरे पास, आई अर्न मनी फ्रॉम दैट. तो दिस इज व्हाट फार्मर बी वाज द स्मार्ट फार्मर. दिस इज व्हाट ही हैज डन.
he actually gone through the process of intercropping. Instead of one crop, he grows two crops, and that is why he earned money, right? तो हमारा ऑप्शन 1 क्या बोलता है? Farmer A must have cultivated only one crop, whereas farmer B must have cultivated two crops. देखो वही कहानी आ गई, ठीक है? इसने 2 क्रॉप ग्रो किया और इस बंदे ने एक ही क्रॉप ग्रो किया। तो जिस बंदे ने 2 क्रॉप ग्रो किया उसका एक क्रॉप तो खराब हो गया पैथोजन की वजह से, बट एक बच गया, इसलिए उसने पैसा कमा लिया एंड ही अर्न मनी। ठीक बात है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटर क्रॉपिंग। समझ आ रही कहानी? तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई मीन these आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन में ऐसा बहुत कुछ लंबा चौड़ा नहीं पूछा है आपसे। अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 9th एंड क्लास 10th, तो बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को आंसर करोगे, ठीक है? तो नथिंग टू वरी अबाउट। हमें सिर्फ करना क्या है? हमें अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट। अच्छे से ध्यान से मन लगा के और थ्रू आउट दी सेशन क्लास 9th का क्लास 9th में फिनिश कर दो। ये तो हम सिर्फ बायो के क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज कंप्लीट साइंस विच इज देयर इन योर एनटीएससी एग्जाम। तो अगर क्लास 9th का क्लास 9th में अच्छे से पढ़ लोगे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो देखो कितने क्वेश्चंस क्लास 9th के टॉपिक से हैं बायो में। एज सेम गोज टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एसएसटी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Our biology teacher placed a hen's egg in 3 different solution. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन क्लास 9 से उठाया हुआ है आपका। द टॉपिक इज लाइक दैट, वी हैव स्टार्टेड इन दैट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना? तो जरूर पढ़ा होगा आपने उस टॉपिक्स के बारे में। तो वही चीज का डिस्कशन इस क्वेश्चन में है, ठीक है? तो देख लेते हैं एक बारी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A bio teacher placed a hen's egg in 3 different solutions. Solution A pure water, solution B saturated salt solution, solution D hydrochloric, solution C is hydrochloric acid. अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले ना हमें मालूम होना चाहिए कि बेसिकली किस टाइप के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ए बी एंड सी में। सॉल्यूशन ए प्योर वाटर की हम बात करें तो प्योर वाटर इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? ध्यान रखनी है ये बात हमें। प्योर वाटर इज व्हाट? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। बी में क्या बोल रहा है? बी इज सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब इट इज व्हाट? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सारा सॉल्ट सॉल्यूट्स प्रेजेंट है ना, तो ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? C is hydrochloric acid. तो अभी क्या पूछता है क्वेश्चन आगे? The sequence of treatment and the ensuring probable effect on the egg are listed below. तो आपको बताना है कि इन सारे सॉल्यूशंस का हेंस एग पे क्या असर होगा, क्या आउटकम्स होंगे, क्या रिजल्ट आएगा निकल के। उसी के हिसाब से हमें बेस्ड ऑन द अबव सीक्वेंसेस टू ट्रीटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, है ना? कि कौन सा सही है, कौन सा गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। यही कहानी हमें बतानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो देख लेते हैं फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विद ए, देन विद बी एंड देन विद सी। देखो ए के साथ ट्रीट होगा, बिल्कुल सही बात है, कोई चेंज नहीं आएगा। देखो क्यों चेंज नहीं आएगा? रीजन है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हेंस एग की बात कर रहे हैं, है ना? तो हेंस एग की बात कर रहे हैं, एक ही सेल है, एग इज वन सेल ओनली। लेकिन एग का जो सेल होता है दैट इज इट इज कवर्ड विद द शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात ध्यान रखनी है हमें, ये बात हमको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तभी हम इसका सही आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है? तो हेंस एग इज कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनको when this egg is put in this solution, it will apply only when once the calcium carbonate layer is dissolved or the pores have been created. ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो हमारा फर्स्ट में क्या है? ऑप्शंस ए बी एंड सी। तो हमने उसको पहले ही ए में रख दिया, भाई वो तो कवर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, नो मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस, तो नो चेंज्ड। बी की बात कर लेते हैं। B is what? B is hypertonic solution. Again calcium carbonate covering is there, no changed, ठीक है? सी पे आ जाते हैं।
देन सी में रखेंगे तब क्या होगा, सी में रखने से क्या होगा, HCl will create the pores on the, start creating the pores on the calcium carbonate shell. That means start dissolving the calcium carbonate shell. So अभी क्या बोला, remains unchanged. तो ये तो गलत बात हो गई. क्यों remains unchanged? अब तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दे रहे हैं उसमें, and the calcium carbonate the porous membrane will create, तो remains unchanged तो बिल्कुल नहीं रहेगा. तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई हमारी. सेकंड पे आ जाते हैं. फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विद बी, है ना, बी में ट्रीट किया हमने, तो बी इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कुछ नहीं होगा. ठीक है, सी पे आ जाते हैं. सी मींस वी हैव बीन प्रोवाइडेड दी HCl टू दी एग. हमने क्या किया, उसको ऐसे उसमें रखा बीकर में जिसमें HCl प्रेजेंट है. इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग पोर्स ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट और स्टार्ट डिसॉल्विंग इट. उसके बाद हमने क्या रखा उसको, फिर हमने उसको रखा ए सोल्यूशन में विच इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब आपको, आपने अगर पढ़ा है क्लास 9th में तो 1 मिनट में इसका आंसर दे दोगे कि ये सही है गलत है. भाई मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट हो गए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा. अब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. ठीक है, पानी बाहर ज्यादा है तो पानी चलना शुरू हो गया वहां से और एंडोऑस्मोसिस हो गया. तो एंडोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, सेल स्वेल्स अप हो जाएगा. बिल्कुल ठीक बात. तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा. समझ आई बात. थर्ड पे आ जाते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, उसको सी पे रख दिया, है ना, सी वाले कंटेनर में रख दिया जिसमें HCl प्रेजेंट है. तो इनिशियली इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग द कैल्शियम कार्बोनेट शेल प्रेजेंट्स आउटसाइड द एग. फिर हमने क्या किया, ए पे रखा उसको. ए इज हाइपोटोनिक. अभी मैंने आपको क्या डिस्कस किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, पोर्स प्रेजेंट है, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा. ठीक बात है, यानी कि सेल स्वेल्स अप कर जाएगा. फिर हमने उसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया बी में. बी में कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट. तो ये हाइपोटोनिक है, यानी कि पानी इस कंडीशन में बाहर आ जाएगा. पानी का मूवमेंट कहां से होगा, फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड. तो डेफिनेटली द सेल इज गोइंग टू श्रिंक दिस टाइम, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा अगेन इट सेज श्रिंक्स, बिल्कुल ठीक बात है. लास्ट ऑप्शन में आ जाते हैं. फोर्थ, बी में रखा कुछ नहीं होगा, ए में रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, सी में क्यों लूजेस सॉल्ट होगा, अभी तो रखा है हमने उसको, है ना, अभी तो स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्स. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सेकेंड एंड थर्ड. तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगेन इंपॉर्टेंट कुछ फिनोमिना है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन. ये सारी कहानी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए. दिस इज योर टॉपिक 1 ऑफ बायोलॉजी इन क्लास 9th, दैट इज द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. उसी में ही ये सारी थियरी आपकी गिवन है. तो अगर क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी अच्छे से, इमीडिएटली यू विल मार्क द आंसर. देखो NTSC स्टेज 2 के लिए भी सेम सिलेबस है, क्लास 9th एंड 10th वही आपको पढ़ना है. बस थोड़ा सा स्टेज 1 की हम बात करें तो द डिफिकल्टी लेवल इज लेस as compared to stage 2. stage 2 के क्वेश्चंस, बिकॉज अब आप NTSC स्टेज 1 क्लियर्ड स्टूडेंट है तो डेफिनेटली द क्वेश्चंस का लेवल भी उसी टाइप का होगा, लिटिल बिट हाई डिफिकल्ट, है ना. लेकिन डिफिकल्ट उनके लिए नहीं है जिन्होंने टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं. टॉपिक्स अगर अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट बिलो. तो टेडपोल है, दो में डिवाइड किया हुआ है, 2 टेडपोल्स हैं. एक को दिया हुआ है वाटर विदाउट आयोडीन. भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो पानी में तो रहता है, बस आयोडीन नहीं है वहां पर उस कंडीशन में. दूसरे की बात कर लेते हैं, वाटर विद आयोडीन. तो जिसको वाटर विद आयोडीन प्रोवाइड किया दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्रॉग, और जिनको नहीं दिया जिस टेडपोल को, दैट रिमेन्स एज टेडपोल. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट. तो आपको ये बताने है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार्ट गिवन. ठीक है, तो देखो एक इसको ऑप्शंस को बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग, दैट यू नो आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन विच इज कॉल्ड एज थायरॉक्सिन. आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, एक बात ये समझ लो. ठीक है, और थायरॉक्सिन की हेल्प से the tadpole will convert into frog with the help of the drastic changes in structure, and that is called as metamorphosis. तो अगर आपको ये कहानी पता है, 1 मिनट में इसका आंसर निकाल दोगे आप. Iodine is required for the formation of thyroxine hormone. Thyroxine is required
for the conversion of tadpole into frog by the process of metamorphosis. ठीक बात है. तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा. Iodine helps to provide thyroxine. This is what I told you just now. Iodine helps to produce thyroxine. ठीक है. Iodine inhibits thyroid gland activity. बिल्कुल गलत बात. Absence of iodine leads to starvation. ऐसा भी नहीं होगा. टेडपोल मर थोड़ी ना रहा है. टेडपोल में ही रह रहा है. The point is this only. है ना. आयोडीन promotes cell growth and division. ये भी गलत बात है. आयोडीन helps to produce the thyroxine hormone and in turn thyroxine converts the tadpole into the frog by the process of metamorphosis. ठीक है. तो ये कहानी आई गेस समझ आ गई होगी अच्छे से. Important question है. This kind of questions generally asked in the competitive exams. So please do learn all these things which is important for the exam. Next question पे आ जाते हैं. Okay. An experiment conducted in the laboratory is tabulated below. अब देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी है और बायोमोलिक्यूल्स का भी है. दो बायोमोलिक्यूल्स आप लोग 9th-10th में नहीं पढ़ते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सी कहानी बायोमोलिक्यूल की दी है. और एक्चुअली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक नंबर 1 क्लास 10th न्यूट्रिशन. ठीक है. तो क्या दिया हुआ है? 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, है ना. 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग कंडीशन प्रोवाइडेड की हुई है आपको. फिर आपको बताना है कि व्हाट कुड बी द रिजल्ट इन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स. What would be the color observed in test tube A, B and C at the end of the experiment? तो आपको रिजल्ट बताना है. टेस्ट ट्यूब ए में क्या किया है? सलाइवा लिया है प्लस आयोडीन एंड इंक्यूबेटेड. मतलब इंक्यूबेट मतलब कि इसको प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस दी हैं, टेम्परेचर एंड ऑल दैट. ठीक है. तो स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन. क्या होगा? सॉरी, सलाइवा इज प्रोवाइडेड विद द आयोडीन. सलाइवा हम जानते हैं, सलाइवा इज एक्चुअली its secretion. There are the glands present in your buccal cavity that is called as salivary glands. मालूम होगा आपको अच्छे से ये बात, है ना. तो salivary glands में secretion क्या है इसका? saliva. Saliva has an enzyme that digests starch. बहुत ही familiar question है ये, theory है. And the enzyme is ptyalin. ठीक है. तो ये एंजाइम क्या है? टाइलिन एंजाइम है, जिसको आप लोग शायद सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते होंगे. और इस एंजाइम को हम टाइलिन भी बोलते हैं. P is silent over here. And this enzyme acts on the carb, one of the carb, and the carb is starch. है ना. स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. दैट मीन्स द एक्टिविटी ऑफ द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ ओनली व्हेन यू टेक योर बाइट और फूड. ठीक है. तो चलो ये तो कहानी तुम लोगों को मालूम होगी कि salivary glands present in buccal cavity secrete saliva. It is an enzyme ptyalin which is also called as salivary amylase and it acts on one of the carb that is the starch. इतनी कहानी आपको जरूर मालूम होगी I guess. ठीक है. ऑप्शंस में क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब ए में क्या था? सलाइवा प्लस आयोडीन और उसको ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की फॉर द एक्सपेरिमेंट. ऑप्शन 2 इज स्टार्च प्लस सलाइवा एंड इंक्यूबेटेड. ठीक है. तो स्टार्च अभी मैंने आपको बताया, सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. ठीक है. टेस्ट ट्यूब सी देख लेते हैं क्या है उसमें. स्टार्च में सलाइवा है, स्टार्च को सलाइवा दिया एंड देन एंजाइम इनहिबिटर इज गिवन. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. प्लस इंक्यूबेट एंड देन प्लस आयोडीन. ठीक है. तो ये तो आपको कहानी समझ आ गई होगी. सलाइवा में आयोडीन इज गिवन एंड देन इंक्यूबेटेड फॉर द ऑप्टिमम कंडीशंस. यहाँ पे कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि कोई न्यूट्रिएंट थोड़ी ना गिवन है. आई मीन द स्टार्च, यू नो, द कार्ब्स टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ सलाइवा गिवन है, कोई भी न्यूट्रिएंट गिवन नहीं है. तो देयर विल बी नो कलर एट ऑल. यहाँ इस केस में नो कलर, कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा ये. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, दैट इज टेस्ट ट्यूब बी. सेकेंड टेस्ट ट्यूब पे आ जाते हैं. इट इज स्टार्च प्रोवाइडेड विद सलाइवा इंक्यूबेटेड. है ना. तो अब देखो सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज टाइलिन, salivary amylase. It is going to digest the starch and a little yellow color will be there. तो हमारा ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन 4. A is having no color, B is having yellow color. इतनी अगर तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मालूम है तो तुमको ऑप्शन तो मिल जाएगा. आई मीन करेक्ट ऑप्शन तो मिल जाएगा अगर ये कहानी नहीं भी समझ आए तो, क्योंकि आपने एंजाइम इनहिबिटर का केस क्लास 10 तक नहीं पढ़ा है.
ठीक है, तो अगर आपको इतनी कहानी भी पता है, यू विल रीच टू द राइट आंसर. ऑप्शन टेस्ट ट्यूब ए में कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, और टेस्ट ट्यूब बी में बिकॉज सलाइवा डाइजेस्ट द स्टार्च विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस येलो कलर. ठीक है, टेस्ट ट्यूब सी में आ जाते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दी हुई है इसमें, स्टार्च प्रोवाइडेड विद सलाइवा. सलाइवा में अभी हमने डिस्कस किया एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, इट इज गिवन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम. तो ये तो स्टार्च को डाइजेस्ट करना चाहिए, बट ये स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? हमने एंजाइम इनहिबिटर भी दे दिया, मतलब इस एंजाइम का इनहिबिटर दे दिया, ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी करेगा ही नहीं, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड द एंजाइम इनहिबिटर टू द एंजाइम. तो एंजाइम इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल नॉट डू इट्स फंक्शन, तो स्टार्च विल नॉट डाइजेस्ट. ठीक है, और फिर हमने इंक्यूबेट कराया, डेफिनेटली स्टार्च तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, इट इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब. दैट मीन्स दिस विल टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक. समझ आई कहानी? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है यहाँ पर. if you people get it, so that's very good. Enzyme inhibitor is going to inhibit the activity of the enzyme, that is ptyalin or salivary amylase, which is not going to digest the starch. Hence this starch convert in the presence of iodine blue black. So हमारे सारे ऑप्शंस देखो यही मैच हो गए. ऑप्शन नंबर 4 में नो कलर, येलो कलर एंड ब्लू ब्लैक. समझ आ रही है कहानी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. I mean, you have studied all these things in your class 10th topic animal nutrition, but इसका थोड़ा सा कहानी आपने नहीं पढ़ा होगा क्लास 10th में. बट देखो, इनहिबिटर इज अ कॉमन इंग्लिश वर्ड, तो अगर इनहिबिटर का मतलब जानते हो तो यू कैन कैलकुलेट दिस. इवन इफ यू डोंट कैलकुलेट दिस, बाय सीइंग दीज टू यू कैन रीच टू द राइट आंसर. बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चंस बनते हैं स्टेज 2 में. अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होगा, कुछ भी आपको मालूम है, तो ऑप्शंस इस तरह से दिए होते हैं कि दैट यू कैन रीच टू द राइट वन इफ यू यूज योर ब्रेन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ओके, दिस इज अगेन फ्रॉम क्लास 9th, टॉपिक सेल. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल. Question says the presence of specific molecule called markers in an organelle can be used to identify the presence of that organelle. है ना, markers. देखो markers क्या होते हैं. Suppose this is class NTSC stage 2. You know that it is stage 2 NTSC class. That's why you joined here. That's why you came here. So NTSC stage 2 is the marker of this class. You are well prepared that what we are going to learn in this class about NTSC stage 2. So this is the marker of this class. ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज जो आपको पर्टिकुलर सारी इंफॉर्मेशन दे उस एज अ होल के बारे में. ठीक है, तो क्या मार्कर है यहाँ पे देख लेते हैं, एंड देन उस मार्कर का क्या फंक्शन है वो भी देख लेंगे, और वो फंक्शन किस ऑर्गेनल से मैच करेंगे यही आपको बताना है. रिसर्चर हैज 3 टेस्ट ट्यूब्स विद ऑर्गेनल्स A, B and C. Each of which shows the presence of one marker as shown below. ठीक है, तो based on the information given in the table, identify the organelle A, B and C. तो आपको मार्कर दिया हुआ है, उसका फंक्शन दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि हम किस ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं. उसी सीक्वेंस में आपको ऑप्शन से मैच कर देना है. ठीक है, तो ऑर्गेनल A इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ऑर्गेनल A जो है उसका मार्कर क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज एन एंजाइम प्रेजेंट. It is a kind of enzyme which is present in the organelle A with reference to question. ठीक है, so that involved in ATP synthesis. Very simple. अगर तुम लोग इस एंजाइम के बारे में नहीं भी जानते हो मानो, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है that ATP synthesis कहाँ पर होता है ना? तो this becomes a marker for you rather. ATP synthesis कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. हम बहुत स्टार्टिंग से क्लास 8 से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो आपका पहले तो आप वही ऑप्शन देख लो कि जिसमें A इज गिवन एज माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपके ये दोनों ऑप्शंस तो अपने आप निकल गए बाहर. एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो A इज माइटोकॉन्ड्रिया. B देख लेते हैं, राइबोसोमल RNA, पार्ट ऑफ राइबोसोम. देखो मैंने आपको पिछली किसी सेशन में जरूर बताया है ये चीज. आई नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, है ना. RNA भी कई टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं रादर. इट इज व्हाट? mRNA, it is tRNA
इट इज rRNA, है ना. तो rRNA जो है दैट स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल RNA. ठीक है. तो राइबोसोमल RNA इज द कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम. ठीक है. राइबोसोम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द rRNA एंड द प्रोटीन्स. दिस इज द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम ऑर्गेनल. तो बिल्कुल सही बात है, राइबोसोम RNA और उसका पार्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ द राइबोसोम. तो बी हमारा कौन सा बनेगा. बट ऑब्वियस है, देखो अगर अब हमें सीइंग दी ऑप्शंस वी हैव टू कैलकुलेट दिस. इट कुड बी राइबोसोम्स, लेकिन क्योंकि राइबोसोम्स हमारे ऑप्शन में नहीं है एंड वी नो दैट राइबोसोम्स आर आल्सो अटैच्ड. इन द लास्ट सेशन ओनली आई हैव टोल्ड यू दैट दे आर डिफरेंट साइट्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल. One of the site is attached to ER, and on the basis of that only we have different types of ER, that is the rough ER and the smooth ER. ठीक है. तो स्मूथ ER को स्मूथ ER क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. रफ को क्यों बोल रहे हैं रफ, बिकॉज इट्स सरफेस इज लिटिल बिट इरेग्युलर, गिव द रफनेस. व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स अटैच्ड टू द ER. ठीक है. तो हमारा बी क्या बन सकता है, बी विल बी विच ऑर्गेनल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक बात है. तो देख लो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ए इज माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात. यहां हमको मिल गया हमारा आंसर, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहीं पे आंसर मिल गया. बी इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस ऑप्शन में तो बी इज गिवन एज स्मूथ ER, तो ये तो गलत हो गया. सही ऑप्शन हमें मिल गया, दैट इज रफ ER. अभी हम पूरा रीड नहीं किया हमने, विच इज गिवन इन द टेबल. स्टिल वी कैन फाइंड आवर आंसर, दैट इज नंबर ऑप्शन नंबर 2, ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड बी रफ ER इज द राइट आंसर. चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक वेदर सी इज करेक्ट और नॉट विद रेफरेंस टू ऑप्शन नंबर 2. सी क्या गिवन है, एसिड हाइड्रोलेज डिग्रेड्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना. अब ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये लाइसोसोम्स की बात कर रहे हैं, है ना. लाइसोसोम्स में क्या होता है, लाइसोसोम्स में बिल्कुल डिग्रेडेशन हो जाता है डिफरेंट मॉलिक्यूल का, ब्रेकडाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एसिड हाइड्रोलिसिस, जो कि आपने कैसे पढ़े होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. So we know that hydrolytic enzymes are present in the organelles lysosomes, with the help of which it is able to break down the different molecules and act as a suicidal bag as well. ठीक है. तो acid hydrolysis means hydrolytic enzymes. Hydrolytic means चीजों को तोड़ना, lytic मतलब होता है तोड़ना, break down. तो वही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, degrades different molecules. ठीक है. तो देखो बिल्कुल सही ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये भी ऐसे गिवन है, सी इज लाइसोसोम्स. कहीं नहीं जाते, हमें यहीं पे आंसर मिल गया. स्टिल आई मीन इफ यू हैव जस्ट रेड ए एंड बी देन ओनली यू विल गेट द आंसर, बट टू क्रॉस चेक दैट वी आर राइट और नॉट, सी इज गिवन एज लाइसोसोम्स. ठीक बात है, समझ आ रही है. तो ये अगेन क्लास 9th टॉपिक सेल पढ़ना है हमको. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है क्वेश्चन में, position of the endocrine glands are labeled A to E in the given diagram, है ना. एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं दिए हुए हैं, उनकी पोजीशन के बारे में विद द अल्फाबेट्स इट इज गिवन. हमको कैलकुलेट करना है कि कौन सा अल्फाबेट कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. मैच द सिंबल्स ऑफ द ग्लैंड इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ द हार्मोन इट सीक्रेट्स गिवन इन कॉलम 2. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या बोला है कि ये तो ग्लैंड हो गए हमारे ABCDE विच इज गिवन इन दी डायग्राम, और इन ग्लैंड्स का सीक्रीशन यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रीशन क्या होता है, हार्मोन. तो इन ग्लैंड के सीक्रीशन हार्मोन को सही मैच करके हमें वो ऑप्शन को फाइंड आउट करना है इन द 4 ऑप्शंस गिवन. तो इसको इस कहानी तक पहुंचने के लिए वी शुड नो द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिप्रेजेंट एज ABCDE. तो पहले लिख लेते हैं कि ए में आपके पास कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं. ए देखो क्या ग्लैंड की बात कर रहे हैं, इट इज ओवरीज. ए बात किसकी कर रहा है, ओवरीज की, है ना. तो ओवरी यहां लिख लेते हैं. ओवरीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ दी फीमेल्स. वन ऑफ द gonads आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, that is the ovaries in females and the testes in males. These are primary sex organs and this A represent the ovary. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, that is option number, I mean alphabet is B. B देखो यहाँ पे given है, तो it is below the stomach, it must be pancreas. So B is pancreas.
ठीक है, सी पे आ जाते हैं। सी कहाँ पर गिवन है? सी इज गिवन ओवर हियर। देखो यहाँ पे किडनीज प्रेजेंट होती हैं, जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, तो साफ लग रहा है कि किडनी के ऊपर कुछ ग्लैंड की पोजीशन बताई है। तो किडनी के अगर सरफेस पे ग्लैंड है तो कौन सा ग्लैंड होगा? इट इज एड्रीनल ग्लैंड, है ना? कौन सा ग्लैंड होगा? एड्रीनल ग्लैंड, which is present on the renal, on the upper surface of the renal, which is kidneys. डी की बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे क्लियर भी नहीं है ना, मान लो ये कौन सा है, whether it is थायराइड और पैराथायराइड, तो ऑप्शन में यहाँ देख लो कि इट इज दी basically it is the, depending on the option, it is the parathyroid, which is the gland is the parathyroid gland. Parathyroid gland are actually present on the posterior side of the thyroid gland. तो यहाँ पे कौन सा ग्लैंड भाई है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, लास्ट अल्फाबेट देख लेते हैं। ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई इज इन द ब्रेन, अनडाउटेडली इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो अब हमने ग्लैंड्स की बात कर ली। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। हमें इन ग्लैंड की सबकी सीक्रेशंस पता है कि कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो यहां देख लेते हैं, ओवरी देखो, ए ओवरी में क्या बनता है? ओवरी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, दैट इज द फीमेल गैमीट, एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। सो फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें, इट इज व्हाट? इट इज प्रोजेस्टेरॉन, इट इज ईस्ट्रोजन, इट इज रिलैक्सिन। ठीक है, तो यहां पे क्या गिवन है ऑप्शन में? इट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो हमारा ए किसके साथ मैच करेगा? 1 के साथ। बिल्कुल सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। ovaries produces progesterone, and you know progesterone is one of the pregnancy hormone. So during the time of the gestation period, its secretion is very much high in the female blood plasma to maintain the pregnancy. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज दी प्रेगनेंसी हार्मोन। ये बात अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हो। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन? दिस इज प्रोजेस्टेरॉन, which is being secreted during the gestation period. Gestation period means the period from the time of fertilization to the time of the parturition. That means the birth of the baby. है ना? तो वो जो पीरियड होता है, विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो इट इज ऑफ अबाउट 9 months. So that is gestation period, and during that period this hormone secretes in high folds. ओवरी सीक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल ठीक बात। चलो बी पे आ जाते हैं। बी इज गिवन एज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अभी लास्ट सेशन में ही हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन, जिसमें आई हैव टोल्ड यू दैट पेनक्रियाज इज हेटेरो ग्लैंड। हेटेरो ग्लैंड है, एंडोक्राइन के तरीके से भी काम करता है और एक्सोक्राइन की तरीके से भी काम करता है। अब क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, सो वील कंसिडर विच पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज? वील कंसिडर द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज, है ना? तो हमें मालूम है क्या बनाता है इसका एंडोक्राइन पार्ट? द 2 हार्मोन सीक्रेट्स, वन इज इंसुलिन एंड द अदर इज ग्लूकागन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारा? इंसुलिन। तो ये भी बिल्कुल सही मैच है, बी मैचेस विद द 2। ठीक है, बी मैचेस विद दी 2। देखो हमको ना एक्चुअली आंसर मिल चुका है, अगर हम नीचे भी ना जाएं। अगर आपको इनके बारे में नहीं मालूम है तो भी हमें आंसर मिल गया इतना तक जानने के लिए। देखो ना, A1 B2 किससे मैच कर रहा है? किसी भी ऑप्शन में है। सेकंड में क्या है? A1 B4। थर्ड में क्या है? A5 B2। फोर्थ में क्या है? A5 B4। तो ये तीनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, और क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी कि सही है कि नहीं है हम, है ना? वी शुड गो फॉर कंप्लीट, दो वी गेट द आंसर बट वी शुड रीड द ऑप्शन थॉरोली एंड विल कंप्लीट द क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है, चलिए सी पे आ जाते हैं। सी इज एड्रीनल ग्लैंड। सी इज एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा है, यू मस्ट बी नोइंग दैट एड्रीनल ग्लैंड हैज 2 रीजन्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। मेड्यूला के बारे में लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन था, इफ यू रिमेंबर, एड्रीनलिन, अ स्क्विरल वाज रनिंग लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? इट वाज एड्रीनलिन। जब स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होगा एंड दैट इज एड्रीनलिन। ठीक है, तो बट यहाँ पे उस रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं? कॉर्टेक्स रीजन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द आउटर रीजन की बात कर रहे हैं। तो आउटर रीजन में वन ऑफ द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड दैट इज एल्डोस्टेरोन। तो हमारा सी किसके साथ मैच करेगा? इफ यू गो विद दिस एड्रिनल ग्लैंड, सी इज व्हाट? सी इज एड्रिनल ग्लैंड, इट इज गोइंग टू मैच विद द this one is actually C.
Aldosterone is produced by the cortex region of the adrenal gland. So C matches with 7. अब देख लेते हैं हमने जो ए ऑप्शन बनाया है सही है कि नहीं है. देखो बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. दैट इज डी. डी इज पैराथायरॉइड ग्लैंड. डी क्या बोलता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड. ठीक है, तो डी में आ जाते हैं. डी पैराथायरॉइड कहां पे दिया हुआ है? पैराथायरॉइड ग्लैंड इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोड्यूस पैराथायरॉइड हार्मोन. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली डी. सो डी मैचेस विथ 3. देखो लो बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, कोई गलती नहीं कर रहे. Though you got the option in just A and B gland, but we'll cross check it whether we are right or not. And we are absolutely right if we are following option number A as the correct one. ठीक है, चलिए E पे आ जाते हैं. E is pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड 6 हार्मोन सीक्रेट करता है, अगर आपने क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा है तो. एंड आउट ऑफ दिस 6 हार्मोन्स, वन ऑफ द हार्मोन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि हमारा E मैचेस विथ 5. तो E मैचेस विथ 5 एंड दिस मैचेस विथ 3rd. तो देखो यही ऑप्शन बनाया है हमने. A is 1, B is 2, C is 7th, D is 3 and E is 5. ठीक है, तो our करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1. ठीक बात है, समझ आ रही है बात? देखो किस तरह से क्वेश्चंस को हम इजी बनाते हैं ना, दैट यू शुड नो. ऐसे ही एकदम से सिर्फ करो, ट्राई टू डू दैट कि ए मैचेस विद सी, बी मैचेस, गलत चीज है, गलत भी हो सकता है. आप पहले इसको क्वेश्चन को करने के लिए ये देखो कि हम कौन से ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, और उसको लिख लो कहीं पर पेपर पे कि हम इन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, और फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ग्लैंड्स, अगर आपने थोड़ा सा भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा है क्लास 10th में, जो कि आपका चैप्टर है क्लास 10th, ठीक है, जिसको हम वी आर एक्चुअली स्टडिंग इन अ मैनर केमिकल कोऑर्डिनेशन. One is neural coordination and the other is chemical coordination. ठीक है, so this all comes in chemical coordination. So you have to go through the glands which is given in the diagram, and accordingly you have to find out that which gland secrete which hormone, and you will reach to the right answer. समझ आ रही कहानी सबको? Yes? चेष्टा बेटा क्लियर है हर चीज? शुभम, ऋषित, मजा आ रहा है? In this year questions are very interesting. Okay शुभम, चलिए देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, लग रहा है पता नहीं क्या पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज पूछी हुई है. लेट्स गो टू द क्वेश्चन. Virulent forms of the bacterium Staphylococcus aureus is a human pathogen. है ना, एक बैक्टीरिया है which is Staphylococcus aureus, एक human pathogen है. Pathogen means disease causing organism है. Some strains of which cause flesh eating disease, है ना, flesh eating disease cause करता है, कुछ strains उसके. Earlier the antibiotic penicillin was used to control this pathogen. तो penicillin is one of the antibiotic which is commonly called as wonder drug. लिख सकते हो ये बात, तो क्वेश्चन अगेन एक फ्रेम हो सकता है, which of the following antibiotic is called as wonder drug? That is penicillin. ठीक है, तो penicillin को यूज किया हमने to control this pathogen. After some years penicillin was ineffective. है ना, बहुत ही कॉमन सी चीज है. दिस इज अ लेमन्स लैंग्वेज एक्चुअली. इफ यू कंटिन्यू टू टेक समथिंग, तभी बोलते हैं ना दवाई भी हमको ज्यादा नहीं खानी चाहिए. वी शुड नॉट टेक ड्रग इन एक्सेस, है ना. वो भी अगर आप बहुत ज्यादा करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम इम्यून हो जाएगा, तो इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू फर्दर. सेम डज विद दिस पैथोजन, विद दिस बैक्टीरिया. तो हम उसको यूज करते रहे पेनिसिलिन, तो इट बिकम्स इनइफेक्टिव. हेंस a powerful antibiotic methicillin was used in treatment. So penicillin was replaced by methicillin to treat the bacteria, to kill the bacteria rather. Subsequently methicillin also became ineffective. हमने उसको यूज किया, वो भी ineffective हो गई. And the strains were showed resistance to multiple antibiotics, also called multi-drug resistant. मतलब पहले पेनिसिलिन यूज किया, इनइफेक्टिव हो गई, देन मेथिसिलिन यूज किया, वो भी इनइफेक्टिव हो गई, फिर भी हमने कई सारी एंटीबायोटिक्स को यूज किया, वो भी इनइफेक्टिव हो गई. सो द बैक्टीरिया एक्चुअली ग्रोज रेजिस्टेंस टू दैट मल्टी एंटीबायोटिक्स.
ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इज करेक्ट, मतलब ऐसा ये स्टेटमेंट से आपको बताना है किसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हुआ, ये कंडीशन किसकी वजह से आई, आपको डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस ये बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। एंटीबायोटिक्स लेड टू म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ बैक्टीरियम thus creating drug resistance strain। नहीं, एंटीबायोटिक ऐसा नहीं करेगी, वो डीएनए सीक्वेंस को नहीं छेड़ाछाड़ी करेगी, रादर वो बेसिकली इट एक्चुअली ब्लॉक्स द पैसेज। एंटीबायोटिक क्या करती है, किस तरह से काम करती है, वो पैथोजन को मल्टीप्लाई करने से रोकती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, antibiotics helps in the selection of bacterium with mutations in the DNA conferring drug resistance which were already present in the population. That is the correct answer. Why it is correct? It is saying like this: antibiotic help in the selection for bacterium with mutations in the DNA conferring drug resistance। मतलब कि when antibiotics are used onto the bacteria, they are actually they are immune to that antibiotic, and the DNA sequence of the bacterium goes changed, and that is why it becomes resistant to that particular antibiotic which is given again and again in a continuous manner। ठीक है, तो ऐसे कौन से बैक्टीरियम ग्रो कर गए, बैक्टीरियम ग्रोज विच इज एक्चुअली ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, है ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने क्या किया, ऐसी स्पीशीज को ग्रो कर दिया विच इज बिकम ड्रग रेसिस्टेंट। तो इस टाइप के एक्शन को हम एक टर्म और भी दे सकते हैं विच इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है विद द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग न्यू स्पीशीज आर डेवलप्ड। हमने उसमें इंटरफेरेंस किया जिसकी वजह से ऐसी बैक्टीरिया स्पीशीज डेवलप्ड हो गई विच इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया। क्लियर है बात? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। So I guess that's all for which is there in the NTSC stage 2 paper. Yes, that was all. 13 questions, I mean among the science section, it was 13 questions asked in biology. So that's all for today's class. I hope you like the video and सबसे ज़रूरी बात जो है कि अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल हुआ आपके एग्जाम के लिए, if you find in any way it is fruitful for your exam, if you get the information, please do like it and subscribe it and share with your friends. So that's all for today's session. We'll meet in the next one and we'll discuss some other paper of NTSC Stage 2. Thank you all.